اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. بشرن یا رسولی بہوا آبادی اسم ہو احمد. میرے پاس ایک رسول بھیج جس کا نام احمد ہو. تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اچھا سا طبیب والا میاں بھیج دے. نام تو اللہ کو پتا ہوگا کیا ہوگا، جو کہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے شفا کا باعث بنے، شفا کا سبب بنے. اللہ میاں شفا کے لیے ہمیشہ کوئی اچھا طبیب بھیج دے تاکہ وہ محنت کر کے لوگوں کو شفا کے راستے ماہر رکاوٹوں کو درست کرے، ان کے امراض کو درست کرے، ان کے مزاج کو درست کرے، ان کے اخلاق کو درست کرے، ان کی چلنے پھرنے کی کیفیات کو درست کرے. تو میں نے 3-4 لفظ استعمال کیے، ایک اخلاق، ایک کیفیت، ایک جو ہے مجاز. تو کل بھی میں نے امروز کا مجاز بتایا تھا کہ امروز کا مجاز جو ہے وہ سرتر ہوتا ہے. تو آج مجھے کچھ دوستوں نے، بھائیوں نے پوچھا ہے، دوست تو جانتے ہیں کہ مجاز کیا ہوتا ہے. تو بھائیوں نے پوچھا ہے کہ یہ سرتر کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے امروز کے بارے میں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے طب میں واقعی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ مجاز رکھتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ جنس کا بھی کیا مجاز ہوتا ہے. کیا مجاز جو ہے وہ ہر چیز کا ہوتا ہے، کیسے مجاز بنتا ہے اور کیسے اخلاق بنتے ہیں، ان میں تبدیلیاں کیسے آتی ہے. اسی چیز کو ہم جو ہے آج اخلاق اور مجاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کل والی بات یعنی کہ سرتر مجاز یعنی کہ بلغمی اور بادی مجاز کے متعلق جو ہے بات کریں گے. یہ وجہ اور مفاصل کیا ہوتی ہے، جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے، اور اعصابی امراض، اعصابی کمزوری کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اور ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. تو ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے آج بلغمی مجاز یا بادی مجاز اور اس کے امراض یہ کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں جی خلت. خلت اصل میں جن چیزوں کا انسان بنا ہوا ہے طبعی طور پہ ان کے مجموعہ کو، جو اس کی بناوٹ میں مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کو ہم خلت کہتے ہیں. مطلب کہ فرض کیا کوئی چیز پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، تو جو پلاسٹک ہے بیسیکلی طور پر وہ اس کی خلط ہے اس کو بنانے میں، جس نے جو پلاسٹک میں مدد دی ہے. تو آج بھی میں ایک بک دیکھ رہا تھا تو اس میں جو فائبر کے بارے میں بتایا تھا کہ فائبر سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ بنتی ہے. کرسٹل جو ہے وہ فائبر کے کرسٹل کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو دھاگا جس سے بنتا ہے بیسیکلی طور پر جو ہمارے کاہو جس میں سے نکلتا ہے، وہ ٹینڈا جس کے اوپر جو ہے وہ کپاس لگتی ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ فائبر کیسے ہوتی ہے، اس کی کیمسٹری پڑھ رہا تھا. تو بڑی زبردست اس کی کیمسٹری ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے اس کے بھی میں نے ہم جو ہے وہ مختلف اخلاق سے، جیسے کہ وہ فائبر بنتا ہے، وہ کپاس بنتی ہے، اس میں کاہو پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کاہو پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اسی طریقے سے انسان کا مزاج جو ہے بیسیکلی طور پر اس خلط سے بنتا ہے جس کو بلغمی خلط کہتے ہیں. بلغمی خلط کی جو ہے وہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ بلغمی خلط جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو اس کو ہم جو ہے جب
मुख्तलिफ खिलतों जब इस तरह से, जैसे मैंने मटीरियल आप समझ लें, जिन मटीरियल से इंसान बना है उसमें बलगम भी शामिल है। बलगम असल में यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जिसके असल मानी, असल लफ्ज़ जो है बलगम है। बलगम अरबी में कसरत की वजह से, इस्तेमाल की वजह से लाम जो है उसको सुकून मिल गया है, जिसकी वजह से इसको जो है ये बलगम का लफ्ज़ जो है ये करार दिया गया है। अंग्रेजी में इसको फेलगम कहते हैं और बाद लोग फेल्जम भी कहते हैं। ये एक सफेद खिल्त होती है। इसकी दो किस्में होती हैं, बलगम तबई और बलगम गैर तबई। तबई बलगम वो होती है कि जब हमारी खुराक से हजम होने के बाद तमाम मटीरियल जो है वो जिगर की तरफ जाता है, तो जिगर के अंदर जाके जो है वहां पे जो है इसकी डिवीजन होनी शुरू हो जाती है। जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो तलछट होता है बेसिकली तौर पर, उस झाग होती है, उसको हम जो है वो बलगम कहते हैं। वो खलखिलत है। जो ऊपर की झाग होती है बेसिकली तौर पर, वो जो है वो खून बनाने में मदद करती है। वो खून के करीब तर होती है लेकिन ये खून नहीं होती, तो इसको हम बलगम कहते हैं बेसिकली। बलगम वो तबई तबई बलगम वो होती है जो खून से बिल्कुल करीब तर होती है, यानी कि वो आसानी के साथ खून में तब्दील हो सकती है। इसका मिजाज सरतर, हमने कल ये जाना था कि जो अमरूद का मिजाज भी सरतर है, तो इसका मिजाज भी सरतर है, इसलिए ये बलगमी रतूबत पैदा करता है अमरूद। इसलिए हम जो लोगों के अंदर बलगमी रतूबत होती है या जो बलगमी मिजाज होते हैं, उनको हम अमरूद खाने से मना करते हैं ताकि उनमें मजीद जो है वो बलगम पैदा ना हो। मिजाज कैसे बनता है ये आगे थोड़ा सा हम चल के बनते हैं, जानते हैं। तो आप अभी खिल्त को समझ लें कि खिलत जिससे जो है वो जिसके अंदर से वो बन रहा है, तो वो जो है सर्द तर मिजाज का होता है। ये बेमजा होती है, इसके साफ दर्ज ज़ैल है, रंग सफेद होता है, इसकी बू नहीं होती। बदरी इंसान के लिए इसके ये फायदे होते हैं कि जब खून की कमी हो जाए तो बलगम जो है खून में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अज़ा को तर रखना इसका काम है बेसिकली तौर पर। ये स्नोबल फ्लूइड और दीगर फ्लूइड और हमारे अंदर जितने भी जो है जिस्म के अंदर चर्बी वाले मवाद जो है, ये बिल्कुल जो है बलगमी रतूबत से जो है वो तल्लक रखते हैं। तो बाद लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है दिमाग भी जो है वो बलगमी रतूबत से जो है वो तल्लक रखता है, यानी कि बलगमी खिल से बना हुआ है, ताकि वो कसरत से हरकत में जो है वो खुश्क ना हो जाए। हमारे जोड़ों के अंदर जो है ये फ्लूइड जो है ये बलगमी रतूबत से जो है वो बनता है। ये दिमाग के तजगिया जो है वो गजा में शरीक होती है, यानी कि इसका तजगिया करती है कि जितनी भी गजा है, दिमाग को भी तो कुछ चाहिए ना जिसको जिसकी वजह से दिमाग नशोनुमा करे। तो बलगम होती है जो कि दिमाग को गजा मुहैया करती है। ये खून के साथ मिलकर इसकी लौजियत यानी कि लेस पैदा करती है। खून के अंदर जो लेसदार मादा होता है बेसिकली तौर पर वो बलगम की वजह से होता है। ये तबई बलगम होती है बेसिकली तौर पर। और गैर तबई बलगम की जो है वो मुख्तलिफ किस्में है, जो कि हमारे दिमाग से कीड़ा रेशा वगैरह गिरता है जिसको हम बलगम, वो भी बलगम है। छाती पे जो रेशा आ जाता है उस वो भी बलगम है। तो वो गैर तबई जो है वो होती है बलगम। इसका मजा और ख्वाब तबई हालत में मौजूद ना हो, यानी कि ख्वाब के सूरत में ये तबई हालत में ना, उसकी जो है वो मुख्तलिफ किस्में हैं। बलगम में मुखाती, ये नाक से निकलने वाली रतूबत जो है इसको हम बलगम में मुखाती कहते हैं। बल्कि बल में ख्वाब खास ख्वाब जो है ये रकीक और गलीज दोनों के दरमियान होती है। तो और इसमें जो है मुखाती ये बनिस्बत बरूदत इनमें ज्यादा होती है, मतलब बरूदत जो है सर्दी जो है इसमें ज्यादा होती है। सर तर इसका मजाज मैंने आपको बताया।
تو اس میں سردی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ بلغم مائی یہ رقیق جیسے پانی جیسا جب نزلہ شروع ہو جاتا ہے، نزول شروع ہوتا ہے تو پانی جیسا جو خراش کا پیدا کرنے والا آنکھوں اور ناک سے جو پانی آتا ہے، اس میں بھی جو ہے برودت بہت زیادہ سردیوں میں نزلہ زکام جو ہوتا ہے، گرمیوں میں جو ہوتا ہے وہ بلغم کی جو ہے وہ زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس قسم کا جو ہے مائی بلغم اس میں جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ بلغم الجزائی یہ قوام پگھلی ہوئی کانچ کی طرح لیسدار ہوتا ہے اور اس کا مزہ جو ہے ترش ہوتا ہے۔ ترش بلغم جو خراش پیدا کر جو ناک کے اندر سرخ کر دیتی ہے، منہ کے اندر سرخ کر دیتی ہے، پوری ناک چھل جاتی ہے، تو یہ اس قسم کی بلغم ہوتی ہے۔ بلغم ہشی اس کا قوام نہایت گلیز ہوتا ہے، گلیز قسم کی بلغم۔ تو ہم جو ہے اور مفاصل اور اس کے بعد جو ہے بلغم میں زیادہ دونوں طرف سے جو ہے گرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لطیف فضا تحلیل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بلغم ہنسی جو ہے سب سے زیادہ سفید ہوتی ہے۔ بات بار بلغم مزہ بلغمی غیر طبعی کی پھر 5 قسمیں ہیں جی۔ بلغم والے یہ گرم خشک ہوتی ہے، مطلب اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ اصل میں مزاج کیا اس کا سرد تر ہے یا تر سرد ہے، تو اس کا مزاج کیا ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے مالے کا، یہ جو ہے یہ نمکین ٹائپ ہو جاتی ہے اور گرم خشک ہوتی ہے۔ تو بلغم حامس یہ ترش بلغم اور سرد خشک ہوتی ہے۔ تو اصل بلغم کا مزاج کیا ہے، سرد تر ہے، لیکن اس کا مزاج جو سرد خشک ہو جاتا ہے۔ یہ غیر طبعی کی بات کر رہے ہیں۔ بلغم حفظ یہ کسیلا بلغم ہوتا ہے، یہ سرد خشک ہوتا ہے۔ بلغم تفا یہ پھیکا بلغم ہوتا ہے، سرد اور کچا بلغم ہوتا ہے، کچا بلغم جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلغم ہلو یہ مزہ شیریں ہوتا ہے اور بعد مار کفیت یہ گرم تر ہوتا ہے، مطلب اس میں جو ہے وہ سردی کے بجائے گرمی پائی جاتی ہے اور تری جو ہے وہ اس کا نیچرل مزاج ہے۔ تو اب ہم نے یہ غیر طبعی بلغم کو جانا، تو یہ ہمارے سنوبل فلوئڈ جوڑوں کے اندر، چھاتی کے اندر نیچرلی طور پہ اس کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پہ بلغم جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے مختلف ادویات دے کے خشک کر دیتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے وہ ایسی ادویات دیتے ہیں، اگر خشک ہوئی ہے بلغم اس کو ہم رقیق کر دیتے ہیں، اگر جو ہے وہ گلیز ہے تو اس کو ہم رقیق کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی ادویات شاندہ موجود ہے، شربت صدر موجود ہے، لوکس پستہ موجود ہے، اور بہت سی ایسی ادویات، لوک قطع موجود ہے، لوک خیال شمبر موجود ہے، بہت سی ایسی ادویات جس میں جوشاندے کا اگر میں ذکر کروں، اس میں تخم خبازی ہے، تخم ختمی ہے، اور لوکس پستہ ہے، اناب ہے، یہ سارے بلغم کو جو ہے یہ نارمل کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے مزاج میں جو ہے وہ سردی اور جو ہے یہ تری لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے بلغم جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اور بلغم جو ہے وہ جسم سے خارج ہونا، یعنی کہ چھاتی کی اندر جمع ہوئی ہے تو وہ خارج ہوگی، دماغ سے جو گر رہی ہے، تکلیف السدوس ہے، اور اس کے بعد خمیرہ غوزبہ نمبری ہے، اور بہت سی ایسی ادویات ہیں جو بلغم کو رقیق کر کے جو ہے اگر زیادہ ہے تو اس کو خارج کر دیتی ہے، اور اگر جو ہے وہ گلیز ہے تو اس کو بھی رقیق کر کے جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ تو اس طریقہ سے ہمارا جو ہے اگر یہ مطلب خشک ہے فرض کیا تو ہم اس کو تر کر دیتے ہیں ایسی ادویات دے کے جو کہ تر ادویات ہوتی ہے۔ تو آگے ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اب مجاز کیسے بنتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر بلغم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی مطلب خلل زیادہ ہو جاتی ہے، آپ مطلب اگر بلغم زیادہ ہو گئی فرض کیا کسی جسم کے اندر، تو جب یہ بلغم زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ بلغمی مجاز ہے۔ سفراز زیادہ ہو گیا، سداز زیادہ ہو گیا، تو اس کو ہم اس کا وہی نام اس کو دیں گے کہ یہ بلغمی مجاز ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کا ہم جب غلبہ اخلاق کے لحاظ سے جو ہے مزاجی شخصیات وہ بن جاتی ہے، پھر کسی کی جنس کے اندر جو ہے وہ اگر کسی بھی جنس کے اندر کسی خلط کی زیادتی ہو جائے، ابھی ہم بلغمی خلط کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی زیادتی جب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا مجاز بن جاتا ہے کہ یعنی اس میں جو ہے وہ بلغمی مجاز والے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ ابھی ہم نے سفید کی بات کی، وہ ساری باتیں جو ہم نے خلط کے اندر کی ہے ان کو ہم مد نظر رکھ کے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بلغمی مجاز رکھنے والے لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں: جسم ڈھیلا،
चर्बी दार और मुलायम होता है। ये औरतों की ज्यादा बलगमी मिजाज होती है। ये जोड़ों की दर्द, मोटी ताजी औरतें जो है इनका बलगमी मिजाज होता है। हमारे डॉक्टर साहब थे हमारे क्लास फेलो, अरशाद उनका नाम था, BMS हमने इकट्ठी की है। तो वो जो है दूर से देख के जब मरीज को बता देते थे कि तुम बलमी मिजाज हो। और बलमी मिजाज की जितनी भी बीमारियां हैं, आपको नजला जुकाम ज्यादा होता है, आपको जो वजन मुफासल ज्यादा होता है, यानी कि जोड़ों का दर्द होता है, जो भी मतलब कि उसकी जो है बलमी मिजाज की, वो अरशाद साहब जो है ना, बड़े मास्टर एमफिल भी उन्होंने कर लिया कराची यूनिवर्सिटी से, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी से। तो बहुत ही अच्छे बंदे थे और वो बिल्कुल बता दिया करते थे। और जब हम मरीज से पूछते थे वैसे मतलब मजाक में, हम वहाँ पे तशील जो हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में, तो वाकई मरीज वही बात बताता था जो अरशाद साहब बताते थे। हम अक्सर उनसे कहते थे अरशाद साहब आप जो है ये नजूमी लगते हैं। वो कहते नहीं, मैं मिजाज को समझता हूँ। तो मिजाज से जो है बहुत से अमराज को जो है वो डायग्नोज कर लेते, तशखीस कर लेते हैं। तो जिन लोगों का मिजाज अगर हम समझ आ रहे हैं, मतलब औरतों को भी अक्सर जो है वो, बूढ़ी औरतें खासतौर पर मेरे पास आती हैं, लगा के चलती हैं, तो उनको जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा होता है। 10-10 20-20 बच्चे पैदा किए होते हैं, तो साथ साथ जोड़ों का दर्द ही होगा। बदन ढीला और चर्बीदार होता है, मुलायम होता है, बदन का रंग सफेद होता है, बाल बारीक और नरम होते हैं, नींद की ज्यादती होती है, वो सुस्त होते हैं। वो लोग जो है बलमी मिजाज वाले सुस्त होते हैं। इनको जो है वो जिनसी कमजोरी भी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं मर्दों के अंदर। और औरतों के अंदर भी ये सुस्ती क्योंकि होती है, इसलिए वो नफरत करती है मतलब कि जो है इन चीजों से। तो बतरी लिहाज से जो है इनकी हरकत जो है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से मोटापे का शिकार जो है इनके अंदर होता है, चलने में जो है दुश्वारी महसूस करती है। और ये जो है अक्सर इनको दर्दे, जिस्म के अंदर दर्द और जो है रुके दमुगियाँ इनकी नुमाया नहीं होती, दबी हुई होती है। तो पेशाब का रंग सफ़ेद यानी कि बेरंग होता है, इनको प्यास कम लगती है और लुआबे दहन बहुत ज़्यादा खारिज होता है। तो ये इनकी बलगमी जो है मिजाज वालों की अलामत होती है। तो जिसकी वजह से जैसे कि मैंने अरशाद साहब की बात की कि अरशाद साहब जो है वो फौरी तौर पर जो है देख के पहचान लिया करते थे कि मरीज जो है वो किस मिजाज का है। तो जब मिजाज का पता चल जाता था, तो वो उससे जो है वो फौरी तौर पर ये बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम जो है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने की सूरत में खुदरी नमक कम कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो है ऐसे अफराद जिनके मिजाज बलगमी या बादी की तरफ मायल होता है, इनके जिस्म के अंदर सुस्ती, थकावट, नकाहत और दर्दों का इजहार जो है वो अक्सर वो करते हैं। अभी मैंने बात की है कि इनमें के अंदर जो है वो ये अलामात जो है वो पाई जाती है। मिजाज में बादी का अल्सर गालब आने की वजह से बदनी खलियात में ऑक्सीजन की जो है वो इनटेक लेवल जो है वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से असाब की सुस्ती सुस्ती में तब्दील हो जाती है। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये लोग जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज्यादा होने के दौरान खून की गर्दिश भी मुतासर होती है। खून का गाढ़ापन, दिमागी असाबी खुलियात की तरफ ऑक्सीजन की रसद कम होने की वजह से होने लगती है। यानी कि जब खून गाढ़ा हो जाता है बलगम की वजह से, तो दिमाग की तरफ खून की रसद जो है वो कम होने जाए, तो ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती। तो ऑक्सीजन जहाँ नहीं जाएगी, वह ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो सुस्ती होगी, और सुस्ती होगी तो फिर जो है वो काम खराब हो जाएगा। तो ये दिमागी और असाबी खुलियात की कारकर्दगी कमजोर होने से असाबी मसाइल, यानी कि जिसमें फालिज, लकवा और इस किस्म के जो रश और पट्टों की कमजोरी के मसाइल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो बलगमी मिजाज होते हैं उनके अंदर ये वाले खसूसियात जो है उनके अंदर ये अमराज जो है वो पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे अरशाद साहब बता देते थे, आप लोग भी जो है मेरे दोस्त तो बता सकते हैं कि जब नब्ज देखते हैं तो बलगमी मिजाज को देखते ही वो कहते हैं कि तुम्हें असाबी कमजोरी है। इस तरीके से हकीम जो है जब भी देखता है नब्ज तो उसको बताता है। असाबी मसाइल में ब्लड प्रेशर हाई या कम होना भी लाजमी तौर पर सामने आया है। लिहाजा सबसे पहले मिजाज से जो है वो बाती खत्म करने के लिए बाती गजाओं को फौरी तौर पर तर्क करना चाहिए। बाती गजाओं में कौन सी है? चावल, दाल, मांस, बैंगन, बड़ा गोश्त, गोभी,
ये यूरिक एसिड वगैरह जो है ना, ये इसी में इनमें ज्यादा होता है, बड़े गोश्त में, पालक में। तो यूरिक एसिड खाद की वजह से भी होता है, और बलगमी मिजाज उनके अंदर जो है वो होता है। आलू और तली हुई और भुनी हुई चीजें, और उसके बाद मीठे पकवान, दूध, दही लस्सी वगैरह से परहेज करें। ब्लड प्रेशर हाई होने की सूरत में जो है वो खुद ही नमक को कम अज कम इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर हाई होने की बजाय लो होने का रुझान हो, तो मरीज के हाथ पाँव के तलवे में के अंदर जो है वो मैजिक ऑयल लगाएं, यानी कि उसमें जो है वो कोई भी ऑयल की मालिश करें और उसको पछोया करवाएं, यानी कि उसको जो है जमीन पानी के अंदर उसके पाँव रख के उसको जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उसकी मालिश जो है वो करें, जिसकी वजह से उसमें जो है वो कमी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी और खून पतला हो जाएगा। वर्दी खत्म होने की सूरत में जो है आपने क्या करना है जी, इसमें जो है वो कुछ अद्वियात मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं नुस्खा बताता हूँ वो जो है वो हर मिजाज के लिए मुख्तलिफ होता है, हर मरीज के लिए मुख्तलिफ होता है। इसलिए जो है वो आप जब तक मिजाज और मरीज को ना देखें उस वक्त तक जो है वो ना इस्तेमाल करें। पुदीना 100 ग्राम, अदरक 100 ग्राम, लहसुन जो है वो 100 ग्राम, काली मिर्च जो है वो 10 ग्राम, सब्ज मिर्च, अनारदाना, सब्ज धनिया हस्बे जायका जो है इस्तेमाल करके चटनी बनाकर जो मरीज को 3 दफा देने से जो है इसकी बेचैनी भी दूर हो जाएगी, और इसके अंदर जो है ये जो जोड़ों का मसला वो भी बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो ऐसे असाबी अमराज के मरीज आते हैं हमारे पास, या बलगमी मिजाज के मरीज आते हैं, आज जो है मैं डीसी यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पे एक फार्मेसी की मेरी पुरानी जो है वो क्लास फेलो से मुलाकात हुई। तो वो कहते कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं इधर हकीम हूँ। तो कहते जी फार्मेसी छोड़ दी, मैंने कहा नहीं फार्मेसी तो करते हैं हम जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को वजन और मुफासल है, तो क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, हम उसका इलाज कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत से वजन और मुफासल यानी कि जोड़ों के दर्द के तो हजारों मरीज आते हैं, और हम उसका मसाज भी करवाते हैं और उसके बाद उसको अद्वियात दे के भी ठीक करते हैं। तो हम जो है तो इसके लिए मजूद सरंजा भी देते हैं, कुछ सरंजा भी देते हैं, अब इजराकी भी देते हैं, मजूद इजराकी भी देते हैं, मरीज की कंडीशन के ऊपर जो है वो मुनसर होता है। खमीरा गौजबान जो है वो जदवान को सलीब वाला भी देते हैं, इसको जो है सुबह शाम इस्तेमाल करवाते हैं। और इसी तरीका से जो है दालचीनी के साथ जो है दूध मिला के इसको इस्तेमाल करवाते हैं। और मुतासरा दाल यानी कि कंधे के अंदर जहाँ भी दर्द हो तो उसको मैं जो है ये ऑयल इस्तेमाल करवाता हूँ, रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करवाता हूँ, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है ये मैं जो है सब मीठे तेल का इस्तेमाल करवाता हूँ, और रोगन उजाड़ जो है कच्छी का मैं जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। उसके मुझे जो है वो अच्छे रिजल्ट जो है वो आज तक मिले हैं। रोगन दालचीनी भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ जोड़ों के दर्द के लिए, उसको जो है बांध के रखने का जो है मशवरा देता हूँ। खुराक के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है तितर बटेर वगैरह का इस्तेमाल, चिड़िया के गोश्त और पतला शोरबा, और इसमें जो है चने का शोरबा भी जो है वो आपके लिए बहुत मुफीद है जिन लोगों को जो है बलगम मिजाज होता है। और खाने के लिए आजकल आम बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा सस्ता है, 150 रुपए किलो का मिल जाता है। और अंगूर जो है ये पिछले दिनों थे और अभी भी थोड़े से बहुत है। तो अंगूर के बेल के बारे में कल मुझे एक वीडियो मिली है, उसमें जो है उन्होंने बताया है कि ये गुर्दे की पथरी को रेजा रेजा करके अंगूर की बेल जो है ये खारिज कर देती है। अंगूर नहीं, अंगूर की बेल। तो ये अभी नहीं मुझे ये पता कि ये किस किस्म की पत्ती को खारिज करती है। तो वो वीडियो जो है मेरे पास मौजूद है, यूट्यूब रिसर्च की वीडियो है। तो उसमें जो है डॉक्टर साहब अगर चाहे तो वो रिसर्च करवा के कि यूरिक एसिड की पत्थरियों को खारिज करती है, या कि यूरेट्स की पत्थरी को, या कैल्शियम ऑक्सलेट की पत्थरी को, या फास्फेट की पत्थरी को, किस किस्म की पत्थरियों को खारिज करती है। तो ये डॉक्टर साहब अगर रिसर्च करवा ले तो ये अंगूर की जो है ये मैं डॉक्टर साहब को भेज दूंगा आज। तो ये अंगूर की बेल के ऊपर जो है तो उन्होंने जो है कहा है। तो डॉक्टर साहब अगर बच्चों से सर्च करा लें तो उसमें जो है एक नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, तो बच्चों को एक जो है चीज़ भी मिल जाएगी हमारे आने वाले जो है वो ग्रेजुएट्स को। तो इस तरीके से जो है ये जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें ऐसी चीज़ें खुबानी अब ये आ गई है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये सारी चीज़ें जो है वो बलगमी मिजाज को जो है वो दूर करने में अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से हमारे जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो बाई बदी और ख़ास तौर पे बलगमी मिजाज जो है वो
खत्म होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। पालक से बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए, टमाटर से परहेज करना चाहिए, और खाने के अंदर फ्रूट के अंदर जो है वो सेब, जामुन और अंजीर का इस्तेमाल जो है वो कसरत से करना चाहिए। तो चंद रोज ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो मैं जो है रात को सोते वक्त या शाम को 4 बजे जो है, ये सुबह 10 बजे जो है वो अभी अमर मुमियाई के साथ जो है शहद और जैतून का तेल, बुजुर्गों को, जितने मेरे पास बुजुर्ग आते हैं और पुट्ठों की दर्द और साबी दर्द और उनको साबी जो है ये मिजाज होता है, बलगमी मिजाज होता है, उनको जो है जैतून का तेल 2 चम्मच, 2 चम्मच जो है उनको शहद दूध में मिला के जो है उसमें दालचीनी थोड़ी सी मिला लें ताकि दूध का जो है मिजाज जो है वो चेंज हो जाए। तो उस वजह से जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ। अदरक जो है वो, अदरक का कावा, पुदीना और सौंफ मिला के जो है ये मैं सुबह नहार पीने की हिदायत करता हूँ। तो चंद दिनों में उनकी जो है वाहिबाती भी खत्म हो जाती है, बल्कि मिजाज भी बेहतर हो जाता है। और जिस्म के अंदर जो उडीमा होता है, सोजिश होती है जो पेरिफेरी में होती है टांगों के अंदर, और जो है ये भी कम हो जाती है। और इससे जो है बेसिकली तौर पर जो घुटनों के अंदर दर्द है या के नीचे जो है ये गिट्टों के अंदर दर्द है, वो भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इस तरीका से जो है ये मैं इलाज करता हूँ बलगमी मिजाज वाले लोगों को। तो गर्म जो है वो जैसे कि सर्द तब मैंने आपको बताया, तो हम गर्म खुश्क उनको अद्वियात दे के जो है इसको कवर करते हैं। जैसे खजूर का मिजाज मिजाज भी जो है वो गर्म खुश्क है, ऐसी अद्वियात हम देते हैं। शुहारों का इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है, और गंगा गोरी, बेग बधारा और इस किस्म के जो है ये इसमें सूंड और थोड़ा सा जो है काली जीरी और काली मिर्च भी डाल के जो है एक सूप मैंने बनाया हुआ है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो मोरंगा भी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो बलगम मिजाज को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि जो है सत्तर मिजाज वाले लोग जो है उनको हम बलगमी मिजाज भी और बादी वाले लोग उनको कहते हैं। उनमें गैस का प्रॉब्लम भी होता है, जोड़ों की दर्द का प्रॉब्लम होता है, बलगम की ज्यादती होती है, तो हम उसको जो है मुखर्ज बलगम भी दवाइयाँ देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और मेरे दोस्तों का और मेरे भाइयों का। तो ये जो अंगूर मैंने अभी बात की है, तो इसकी वीडियो मैं सर को भेज रहा हूँ। तो सर इस पे जो है वो काम करवा लें बच्चों से, तो जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कौन सी जो है ये पथरी को डिजॉल्व करती है, रेजा रेजा करके खारिज करती है। हम जब बहावलपुर में पढ़ते थे तो उस वक्त हम बहावलपुर कोरिया हॉस्पिटल से मुख्तलिफ पथरियाँ लाते थे, तो वहाँ पे जो है ये अ, उनको ला के जो है हम मुख्तलिफ चीज़ों में डिजॉल्व करके जो है, जैसे हिजरुल यहूद में डिजॉल्व की, उसके पानी में डिजॉल्व की, या कि जो है वो आब तुराब जिसको हम मूली का पानी कहते हैं उसमें डिजॉल्व की, और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों में डिजॉल्व करके हम उसको हल करते थे। तो जब चंद दिनों के बाद हल हो जाती तो हमें जो है ये बड़ी खुशी होती थी कि अब हल हो गई है।